Hello everyone. Hi guys. So I welcome you all on the behalf of Baju's exam prep. So guys, आज हमारे साथ very distinguished guest of honor is there. ग्रुप कैप्टन भरत 27 ईयर की सर्विस है सर की इंडियन एयरफोर्स में। सर के अपने साथ एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस लेकर आए हैं जो हमारे साथ आज शेयर करेंगे सर। सर हिमसेल्फ इज एन एक्स एनडीए गाइस, 85th कोर्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी, डेल्टा स्क्वाड्रन। Secondly, sir was a member in the service selection board. सर के हाथ के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एंड सर का ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, सर वाज हिमसेल्फ ए डिविजनल ऑफिसर इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिविजनल ऑफिसर गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, डिविजनल ऑफिसर इज द पर्सन जो एक कैडेट को ऑफिसर बनाता है। वो 3 साल की उसकी ट्रेनिंग में उसके अंदर वो पर्सनैलिटी चेंज या पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का जो काम होता है वो एक एक डिविजनल ऑफिसर का काम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। सर हैज सर्व्ड इन द वेरियस इंपॉर्टेंट प्लेसेस। गाइस याद रखिएगा, जो वीवीआईपी क्रू होता है, सर वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट। सर आई वेलकम यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ बैजूस एग्जाम प्रेप। और सर, सारे बच्चे बहुत सारे डाउट्स के साथ एसएसबी का जानना चाहते हैं, रिटर्न का जानना चाहते हैं। गाइस सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, जिसके पास जो भी डाउट हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालता जाए। मी एंड सर विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आपको मैं बताता जाऊंगा, सर हेल्प करते जाएंगे कि जो भी आपका डाउट है हम उसको तुरंत तुरंत हेल्प कर सकें। सर, अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रिसेंटली चल रहे हैं। अभी वी हैव जस्ट गिवन द एनडीए एग्जामिनेशन एंड सीडीएस एग्जामिनेशन ऑन 27th of April। सर, मैं सबसे कॉमन डाउट्स के साथ आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज गिव अस सम लाइट की हाउ वी शुड डील विद दैट। लाइक सर, कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? ऑल ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड इन डीआईपीआर, but is there any change in how they select somebody for Army, Navy, and Air Force? Thank you very much, Akash. I'm glad to be with you. And you asked me a wonderful question. Is there any difference in the service selection board? Surprisingly, the same question was asked to me by one of the candidate who had come to Mysore from, like there was a candidate who had already cleared the army board, and he had asked a similar question. I find a lot of difference in this and all. Because he felt he was a cadet in the OTA and he came on that leave from OTA to this place. So he was saying, sir, I find this is very different from Army board. So I asked him, what did you find different? But cutting the long story short, I would like to tell you, actually, that is the perception of the candidate is that he sees कि army board ऐसा है, navy board ऐसा है. But actually, if you look at it, the Defense Institute of Psychological Research is the place where all three services assessors, when I say assessor, the GTOs, the interviewing officers, the psychologists or the technical officers as they call it, they all get trained in one place only. That is the DIPR, which is in Delhi. Okay. That is there. I would say the theory part is given there. Thereafter, they go to the respective services for their on-job training. There is a particular amount of interviews an interviewing officer does in the selection board. Thereafter, they get posted to the various boards. The selection is based in all three services based on the suitability of the candidate. Okay. And the procedure is also determined by DIPR. I've had the tenure, luckily, by God's grace, I was posted in DIPR. I know that DIPR is the body which actually decides what should be the procedure, how it is done. Of course, the service people are also involved in accepting or giving a suggestion to it. So the procedure is the same. Like if you say interview, if it is an interview in Bangalore, or if it is an interview in Bhopal, or if it is an interview in Mysore or Dehradun, it doesn't matter. It is actually the same interview, and the tools which are used, like there will be TAT in All the boards. Bhopal, there will be TAT here also. It is the same thing. Yes. However, like there is a small difference in, I would say, like for the girls, the TAT pictures are different. For the boys, it's different. Now, Okay. when you say
these are the minor things which will be there. See, what is the stimulus required for a girl to find out? Now we have NDA girls. The age is different. Like NDA boys, the age group is different for a person who is coming for a graduate entry or for a JAG branch. Yes, So you will find that there will be minor differences in that. And that is like, maybe you have all been given basmati chawal, you want to make biryani, or you want to make probably pulao or matar pulao or something like so. Thoda bahut tadka will be different, but otherwise the same thing. Like somebody might ask questions about in an interview. I'm saying it's a very dynamic technique. Somebody might ask the current affairs more, or somebody might garb it in a different way. So overall, you will find that the procedure is same. Like how, like we are all going to assess people based on the officer-like qualities, but there is a small difference to it. Like for example, you take an officer-like quality called speed of decision. okay, Now you are selecting a person for JAG branch in the army, and you are selecting a flying branch, maybe for, obviously you will think of a fighter pilot. Now, ठीक, speed of decision required for a fighter pilot may be of a slightly different level to a person who is doing JAG branch, who is going to deal with the legal cases in the army. So you will find that this correction is applied by the individual assessor. okay, So this individual assessor is going to modify that, and obviously at a higher level, the service also. Like if you go to an army board, you will find that the height of the obstacles hmm, in the GT ground will be slightly lower. Whereas in the Air Force, you will find the elevation has gone up. Basically, in the Air Force, we are looking for the fear of heights. You're okay, going to sit in an aeroplane. Now, if you're sitting in an aeroplane and you have fear of heights, so if you have already smashed it, then he doesn't have any fear of heights, so you are going slightly ahead. So these are some minor aspects which you will find that there will be a slight difference. okay, okay, sir. But that might look to the person who is doing it, and maybe the administrative procedure. In the army, you go and report the previous day. In the Air Force, you come in the morning. So these are administrative changes. But otherwise, the techniques, the procedures, everything is the same. I hope I've answered your question. यस सर, सर वेरी मच क्लियर। तो गाइस देखो सर ने क्या बोला है, मैं एक बार एकदम क्लियर में बता देता हूँ। ओवरऑल प्रोसीजर इज सेम, ओवरऑल कंप्लीट प्रोसीजर वेदर इट इज फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, प्रोसीजर इज सेम। कुछ ओएलक्यूज में आगे पीछे हो सकता है आपकी देखी जाती हो कि आर्मी में कुछ डिफरेंट हो, नेवी में कुछ और, एयरफोर्स में कुछ और है, विच सर हैज टोल्ड अस। सो मैं ये सर की बात को यही बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी जो ओएलक्यूज की पूरी लिस्ट है 15 ओएलक्यूज, एक में कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट सर? एक आध में कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं Yeah, पड़ता। yeah. I will put it in मैं आपको I can use Hindi यस ना. सर, I'll use a little bit of Hindi in यस between. देखिए, अगर आप एक OLQ है करेज. ओके, करेज में अगर मैं एयरफोर्स के लिए देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये बंदा कॉशियस है, सोच समझ कर रिस्क लेता है. ये एक इंडिविजुअल का, व्हेन वी आर सीइंग द ऑब्स्टिकल्स, व्हेन वी आर सीइंग थ्रू द वेरियस टेक्निक्स, हमें पता चल रहा है यार ये रिस्क लेने से पहले थोड़ा सोच समझ कर रिस्क लेता है, कूदेगा नहीं ऐसे. Now, this is a very good thing for a Air Force pilot who will see the weather of the destination. He will see the weather of what is happening overhead, and he will also assess the thing and then take a risk. ओके, So for Air Force, I feel he's perfectly, I mean, there is no problem at all. But if you are going for a army board where you will find that the person is hesitating every time to take a particular risk, so maybe he will view it slightly differently. Now when we are talking of now this is a, and this is not purely on OLQ, one OLQ से कुछ नहीं होता है. ठीक है You सर, will see the overall personality. Now he's got a tendency. See, इसके लिए there is a, this is what we are taught or we teach in DIPR. I've been in DIPR also. Like that is how you teach. See, if your personality, ये जो आपका tools दिए हैं, these what are these techniques and what are the tasks which we do? They are only tools. Now, those, if you see the candidate through these tools, you will find that this person is showing there are certain principles in which the techniques are made. So you will get the responses in a particular way and you will slot, okay, he is hesitant or he is cautious. He initially hesitates, but he never looks back. So ठीक है these are the shades of the candidate. So now you might not, like suppose somebody climbs an obstacle and he's looking 3, 4 times.
thinks and then takes. So maybe that will be viewed, and it is not only on one task. It is the overall personality which is seen. I hope मेरे ख्याल से ये आपको, बिल्कुल ठीक है I सर। think I am clear. यस सर, यस सर। सर एक बहुत वेरी कॉमन क्वेश्चन सर, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दोज हु आर इन बायजूस एग्जाम प्रेप और स्पेसिफिकली इन दिस चैनल सर, दे आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड सर वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आई फेस हियर इज कि सर आई एम हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश थोड़ी सी टफ है। मैनी टाइम रिटर्न की ज्यादा कंप्लेंट नहीं होती है सर, बट हिंदी फॉर स्पीकिंग पार्ट, हाउ डू यू डील एज एन असेसर कि हिंदी स्पीकिंग कितना बड़ा डिसएडवांटेज है, या हाउ डू यू टेक इट एज सर? Now, Hindi is not, see, there is a OLQ called as power of expression. ओके सर। Now, power of expression, see, I'll talk only of OLQs. ओके, इंग्लिश हिंदी में बात ही नहीं कर रहा हूँ ठीक है ना। सर। अगर आप किसी का पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, इसका मतलब रिटर्न भी हो सकता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एंड ठीक। स्पोकन भी होगा। नाउ इफ लैंग्वेज इज अ बैरियर, अगर लैंग्वेज आपको इंग्लिश में बोल नहीं पाते हो, आप क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, आप इंग्लिश में समझते हो, फिर हिंदी में कन्वर्ट करते हो, फिर हिंदी में आंसर ढूंढते हो, फिर हिंदी से आप फिर से इंग्लिश कन्वर्ट करते हो, हम्म। अगर ये आपकी परिस्थिति है, ना व्हाट हैपेंस इज, सी द टाइप टेस्ट जो होती है वो इंग्लिश में ही होती है। हम्म। सो यू जी। विल फाइंड, आपको लगेगा कि भैया ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, हम्म। कोई आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपका 1 सेकंड 2 सेकंड आपका क्या हो गया, एक्चुअली वो की स्पीड ऑफ डिसीजन पे हो गया ना सीधा। यस। जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि स्पीड यस। ऑफ डिसीजन, आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग रहा है, तो OLQ में वहां आपको थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो, कोई क्या बोल रहा है पहले सोचोगे, हिंदी में कन्वर्ट करोगे, ये मेंटली चल रहा होता है, सबका चलता है। किसी को मदर टंग इज मदर टंग, नोबडी डिनाइज दैट, सी, बट हिंदी का एक्चुअली, इफ यू लेट अस, मैं एयरफोर्स का हूँ, एयरफोर्स में ही नहीं, सिविल में भी, कहीं पे भी आप रशिया में फ्लाई कीजिए, आप चिली में फ्लाई कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, जापान में फ्लाई कर लीजिए, फ्लाइंग में सब कुछ इंग्लिश में होता है, क्योंकि आपको, स्पेशली इफ यू आर रिलेटेड टू फ्लाइंग, आपको, देयर वाज अ फेमस एक्सीडेंट इन द ईयर 1995 नियर चरकी दादरी, वेयर वन रशियन और उज्बेक एयरलाइन हैड mid-air collision with a Saudi Arabian aircraft. A lot of अच्छा। people died. There is an incident like this wherein people, because that person was using his accent in a very, very, I would say, in a very funny way. I was also flying that time. Like he was confirm descent to this altitude, confirm. ऐसा बोल रहे सऊदी वाला कुछ अपना, I didn't understand बोल रहे, तो पूरा आरटी क्लॉग हो गया. So whenever you deal with flying, you will see that आपको quickly you will have to understand there is something called a situational awareness. वो सब आपका इफेक्ट होता है अगर आपको ये लैंग्वेज बैरियर ही आ गया। नाउ कीपिंग दैट असाइड, उसको अलग रख लीजिए, अगर आपका ट्रेनिंग एनडीए के लिए जा रहे हो, तो यू विल फाइंड दैट कि 3 साल का ट्रेनिंग है भाई आपके पास। यस सर। मैंने कहीं में, जब मैं इंस्ट्रक्टर था एनडीए में, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, 3 साल है, आप उनको पब्लिक स्पीकिंग कराएंगे। इनफैक्ट इंसिडेंटली देयर इज ए कंपटीशन कॉल्ड एज पब्लिक स्पीकिंग नाउअडेज इन इंडिया, इट यस वाज सर। नॉट देयर इन माय टाइम, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू आकाश, Yeah, no, sir. बट In my time नाउ also इट्स it was there. Public speaking competition was there. public speaking competition is you see the importance of that, because tomorrow you are a military leader, you should be able to communicate. Definitely, sir. Yes, sir. एंड आपका ट्रूप्स, अगर आप पंजाब रेजिमेंट में जाते हो, आप तमिलियन हो, लेकिन वहां जाके आप पंजाब सीख लोगे, पंजाबी में ही बात करोगे, आप सिखले में आप जाओगे, सिखले में पंजाबी में बात करोगे, ऑर्डर्स भी वहां पे वही दोगे। तो सिमिलरली यू विल गेट दिस टाइम इफ यू आर एन एक्स एनडीए और इफ यू आर गोइंग फॉर एनडी एंट्री। सपोज यू आर गोइंग फॉर दैट 1 ईयर ट्रेनिंग, यू आर ए फाइटर कंट्रोलर, आप 1 साल का ट्रेनिंग है एफए में, Hmm. आपका इंग्लिश इज अ बिग वीकनेस ऑफ योर्स और यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, आपके पास उतना टाइम नहीं है। सो दैट इज वेयर मेरे हिसाब से उनका नेगेटिव पॉइंट वहां पे है, लेकिन देर इज नो बायस, बिकॉज पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आपका रिटर्न स्पोकन आगे खत्म है। Yes, sir. आई होप आई हैव आंसर्ड इट। Yes, sir. So, sir, guys, सर ने क्या बोला है? इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर, ध्यान से समझ लीजिएगा सर ने क्या बोला है। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यस, एनडीए के बच्चों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके पास एक 3 साल प्लस देयर सर्विस एकेडमीज, उनके लिए उनके पास एक ये एडवांटेज होती है।
बट जो डायरेक्ट एंट्री जाते हैं, सीडीएस हो या ओटीए हो, थोड़ा सा उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि देयर लैंग्वेज शुड बी गुड। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली, सी लैंग्वेज शुड बी गुड नहीं है, ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। कम्युनिकेट। ओके सर, अगर उसको समझ में नहीं आया, सी दैट क्रैश ऑफ चरखी दादरी इज बिकॉज ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय दिल्ली radar. When ओके he is telling him something, he could not understand, and he kept on repeating, and it's a mid-air situation. ओके So ओके। I am not quoting. The Air Force has not decided, or even other services have not decided because of that accident. उनकी हम्म। वजह से ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन अंडरस्टूड। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि ऐसा होता है, आपको समझने में टाइम लगता है। या फिर सिमिलरली आई विल टेल यू, पावर ऑफ एक्सप्रेशन में आप लिखित में अच्छा लिख सकते हो, लेकिन आप स्टैमर करते हो। हम्म। यस सर। तो ये स्टैमर का आपको डिसएडवांटेज होगा ना, इन अ फ्लाइंग एनवायरनमेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके ओके। एंड व्हाई नॉट ओनली इन द एयरफोर्स, सी आई एम, मैं एयरफोर्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एयरफोर्स का हूँ। यस आई एम सर। श्योर दैट आर्मी में भी ऐसा रिक्वायरमेंट होगा, वेर इन आपका शार्प क्रिस्प आपका कम्युनिकेट करना जरूरी होती है। यस यस। आई होप आई आंसर्ड। Yes, sir. Yes, sir. Sir, one more question, sir. Many of our students are there, those who have qualified once. मतलब I'm talking about कि they have reached till merit list, especially for the girls candidates, sir. I'm asking this thing. क्योंकि गर्ल कैंडिडेट्स की सर सीट इन एनडीए एज वेल एज सीडीएस ओटीए सभी में सीट्स बहुत कम होती है गर्ल कैंडिडेट्स की। सो मैनी टाइम सर माय ओन स्टूडेंट्स आर देयर कि जो सब क्वालिफाई कर गए, रिटर्न क्वालिफाई, एसएसबी क्वालिफाई, मेडिकल क्वालिफाई, बट मेरिट में दे रीच समवेयर जहां पर उनको नहीं आ रहा, मतलब उनका फाइनल कट ऑफ दे आर नॉट क्लियरिंग। हाउ डू यू डील विथ दीज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स जो कि दोबारा आए हैं, मे नॉट बी इन द सेम एसएसबी, हो सकता है किसी दूसरे एसएसबी में आए हैं। सो डू असेसर्स नो कि ये बच्चा पहले क्वालिफाई हो चुका है, एंड हाउ डू यू डील देम विद? ओके, फर्स्टली एज ए जीटीओ मुझे पता नहीं होता है, मुझे ये पता चलता है कि ये रिपीटर है। ओके ठीक है। आई विल नॉट नो। इन जीटी टेक्निक आपको ये आपका पीआईक्यू नहीं मिलता है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर लिखते हैं, और उसमें भी आप रिकमेंडेड हो या नहीं वो लिखने का जरूरत नहीं होता है। ओके ठीक है सर। लेकिन कुछ लोग लिख देते हैं जिससे उसमें दे थिंक दैट इफ दे से आई एम रिकमेंडेड इट्स एन एडवांटेज। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको यू इट इज अ क्लीन स्लेट। लाइक इट इज, आप सेमीफाइनल जीत गए हो तो आपको कोई, सपोज वी हैव आईपीएल चल रहा है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आईपीएल, वेरिन आपको लगेगा कि बिटवीन टू टीम्स, चार टीम होते हैं जो आपका सेमीफाइनल में जीतते हैं, सेमीफाइनल में उतरते हैं, और उसमें से दो टीम जीतते हैं। एक टीम 100 रन का मार्जिन से जीतता है, एक टीम 50 मार्क से जीतता है। हम्म। अब फाइनल में दोनों सेम है ना, यस सर। यस सर। फाइनल मैच अलग है। इस ऐसे ही जब आप जीटी करते हो या साइड टेस्ट देते हो, वो उस टेस्ट में आपने क्या लिखा है इज व्हाट मैटर्स। जस्ट बिकॉज यू हैव डन द थिंग अर्लियर, डेफिनेटली प्रीवियसली आपको क्वालिफाइड। एडवांटेज है कि आप में आपको कॉन्फिडेंस है कि यस सर। यस आई कुड पास। दैट कॉन्फिडेंस इज देयर विथ यू। सर्टन टाइम्स यू आर मेरिट आउट फॉर योर रिटर्न मार्क्स। हम्म। हम्म। आपको रिटर्न में 300 मिला, आपको 400 मिला आपको इन योर एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यू, तो आपको 700 आया, आपका मेरिट आया समवेयर अराउंड 560 और 550 ऐसा कुछ आया आपका। एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग आपको लगेगा कि यार इज इट बिकॉज आपका ओएलक्यू में कम था। सेम एग्जाम somebody scored 520 and he's got 380, 520 plus 380 आपका 900 पहुंच गया। यस सर। यस। So actually, the game changer was the written exam. So how do you know whether this person has failed because of the lack of OLQ or lower marks in the cutoff? Most of the times, the written marks decide. That is why I tell all my candidates that written आपके हाथ में है। आप वेरी। रिटर्न को अच्छे से लिखिए, ताकि आपके हाथ में वो तो है ही है। उसके बाद आप एक डिफरेंट प्लेग्राउंड में जाओगे जिसमें आपको पता ही नहीं है। अगर आपने गैट में 150 क्वेश्चन है, आपको पता है मैंने 100 लिख दिया, आपको पता है 400 आएगा। वेरी इंसाइटफुल सर। आपको मुझे ये मुझे ये चीज अब क्लिक कर रही है कि एक्चुअली रिटर्न हमारे हाथ में ज्यादा है, एसएसबी तो हमारे हाथ में है ही नहीं। नहीं तो मेरिट का, यस सर, ये बहुत इंसाइटफुल है एक्चुअली कि रिटर्न पे ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं उसके ऊपर।
हाँ, जब मैं भी देखता हूँ कैंडिडेट की एक कैंडिडेट रिपीटर है, उसके बिहेवियर, सी आई एम ए जीटीओ, आई विल टॉक ऑफ बिहेवियर, इसका बिहेवियर से मेरे को पता चल गया कि अरे ये तो पास मटेरियल है। हम्म। हम्म। तो ये पिछली बार आया था तो गया क्यों नहीं? एंड सेकेंडली, इफ आई एम टेकिंग ए कैंडिडेट नाउ, आई वुडंट हैव डन दिस कैंडिडेट अर्लियर। ओके। ओके। साइकोलॉजिस्ट भी नहीं लेगा, इंटरव्यू भी नहीं लेगा। एक ही बार इंटरव्यू होगा आपका एक बंदे के साथ, उसका रिपीट नहीं होगा। ऐसे जीटी बैच में भी, सपोज आई डू ए जीटी बैच, आई हैव रिकमेंडेड हिम, ही इज नॉट कम इन द मेरिट लिस्ट, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गेट द सेम बॉय। ओके। ओके सर, नाइस, यस This यस। is done because this is a procedure which we follow. These are all decided कि आप अपना बायस नहीं लगाना कि यार ये पिछली बार भी आया था बेचारा रुक गया, मैं उसको ज्यादा नंबर दूंगा इस बार, ऐसा नहीं है। सो यू आर बीइंग evaluated for that day's performance. ओके। ओके। I have he's now a wing commander in the Air Force. He's a technical officer. He had come for those days in 2009-10. People used to be appearing for different batch. अभी AFCAT हो गया है, तो पहले एक लड़का आया. He has passed for the technical branch, and within 2 weeks he again comes for the flying branch. ओके। Okay, I will not name him for anonymity. Now this boy, he passed the previous time. So when he came back, he felt it is the same place and it is the same thing. I was the duty officer in the first batch when he came, and I have announced his number, so he knows that I read his name. Now this boy, next time, because I was in charge of the candidates mess, I used to see him in the mess. So I realized that कि वो बहुत overconfident हो गया. The same boy has met me in 2017 and told me कि सर एक में पास हुआ, एक में पास क्यों नहीं हुआ मैं? ओके सर, एंड देन ही हिमसेल्फ सेड कि मैं तो दूसरों को मदद कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। अरे यार, आप प्रीवियस लॉरल्स पे आप इस बार पास थोड़ी हो गए। आपको एक बार रिटर्न लिख रहे हो तो दूसरी बार भी रिटर्न लिखोगे ना, पिछली बार पास थे या नहीं। सेम थिंग इज अप्लीकेबल हियर। ठीक है सर, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल गया बच्चों को। गाइस, सो मैं अभी सभी बच्चों को फिर से बोल देता हूँ, कहीं पे भी किसी भी बच्चे के पास कोई डाउट है, प्लीज डायरेक्टली यू कैन आस्क क्वेश्चन टू ग्रुप कैप्टन भरत। आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी की एसएसबी लाइंड अप है या एसएसबी के बारे में कुछ इंसाइट जानना है, वी बोथ विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सर, वन क्वेश्चन स्टूडेंट दे आस्क कि इज इट एडवाइजेबल टू टेक ट्रेनिंग फॉर एसएसबी? मतलब क्या एसएसबी में जैसे पूछ लिया जाता है सर, देयर आर मेनी टाइम दैट इंटरव्यूइंग ऑफिसर दे डायरेक्टली आस्क, और जेटीयू दे डायरेक्टली आस्क कि हैव यू टेकन इंटरव्यू? तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी इंटरव्यू, कहीं पे भी आप जाते हो तो आप कहीं कोचिंग लेते हो तो आपके पास, या ट्रेनिंग आप खुद लेना चाहते हो तो आप क्या क्या चीजें करते हो? सबसे पहले आप फेमिलियराइज करोगे कि भाई प्रोसीजर क्या है। हम्म। ठीक है। फेमिलियराइजेशन में आपको क्या क्या आएगा? यू विल नो दैट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेज वन, यू डोंट पास, यू माइट कम द सेम डे बैक। ओके। दूसरे दिन आपका साइक होगा, आपका जीटी होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बावजूद एक कॉन्फ्रेंस होता है। ये फेमिलियराइजेशन पार्ट में आ गया। अब आप जीटीओ में तो कितने टास्क हैं, 9 टास्क हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में क्या क्या है, आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, आपको पता है कि क्या लिखना है, पहले आप प्रिपेयर कर सकते हो। सी दैट इज वन पार्ट विच इज कॉल्ड एज फेमिलियराइजेशन। ठीक है सर। तो आपको पता है कि ये गो थ्रू करेगा। दूसरा चीज क्या होगा, आप अपने वीक पॉइंट्स पे, जो फेमिलियराइजेशन तो हो गया भाई, मैं कभी जिंदगी में कूद के रस्सी नहीं पकड़ा हूं और वहां जाके मुझे ये करना है, तो अगर मुझे पता है तो विल आई सिट डाउन एंड से कि देखी जाएगी, और विल आई डू समथिंग अबाउट इट? हम्म। So हम्म। that part is what you are talking of training lena. And if somebody is asking you, you don't have to feel shy about it. See, suppose if I am a person, service officer's son or service officer's daughter, and my father is from the Army Supply Corps, and we have got horses. And I say, no, I will not do horse riding here, because when I go to SSB, I'm not going to utilize my resources like this. No, it is the other way around. In fact, if you are available and if you can ride, take that experience, learn things. So similarly, the familiarization के बाद आप, you will try to get yourself trained, and then there will be the third aspect wherein you have certain weak points. हम्म। Somebody has, you yourself, either you are
सेल्फ अवेयर दैट कि मेरा ये वीकनेस है, मैं इसके लिए करेक्शन ये करना चाहिए। दिस इज वेयर दिस ट्रेनिंग एकेडमी और द मेंटर कम्स इन। सी, कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी, कोचिंग एकेडमी, या खुद आप किसी बंदे के पास जाते हो, यू गो टू ए पर्सन whom you think is capable of helping you. What is he doing? He will tell you कि इतने टेस्ट हैं, he will tell you that uh, this is the practice you should do, and then he will tell you this is the weakness, this is where you have to improve. Right. So I personally feel it is very natural. Either you ask somebody, or आप you are self driven, और यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं जब 1990 में एसएसबी गया था, आई हैड कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड देयर इज नो एक्सएनडीए इन माय स्कूल बिफोर मी, सो आई हैव नोबडी टू आस्क एक्चुअली। सो मैंने क्या किया, एक किताब खरीदा, किताब में देखा, मैं सोच रहा था कि किससे पूछूं। हम्म। एक बच्चा था जो जाके रिजेक्ट होके आया था, मैं उसी के पास गया, भैया तूने क्या देखा है, क्या हुआ। हम्म। एंड नाउ आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ कि यार ये ठीक बोल रहा है कि नहीं है। Now today's world, we have so many things like you. There is videos, there is a coaching academy, there is a person who is saying, "Okay, you can come and ask me the questions. I will tell you what it is." So many forums are there, so many places. There is nothing like, I will not learn. See, if your father knows something, you ask your father. Eh? True, sir. True, sir. Your brother knows, you ask your friend. See, this is how you will learn things, and maybe if you find the right person, and again that is your judgment, then he will give you the correct mentoring. सी, जो थर्ड पॉइंट है, एक चीज फेमिलियराइज है, आप नेट सोचोगे कि नेट में कर लूंगा। दूसरा चीज है प्रैक्टिस, नेट से मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन आपका वीक पॉइंट कौन बताएगा, आपका स्ट्रेंथ क्या है? यू शुड प्ले टू, बिकॉज देर इज नो रामचंद्र जी हियर अमॉन्स्ट इन दिस जनरेशन हु इज सर्वगुण संपन्न। तो कोई नहीं होता। अब OLQ में सारे आपके पास सब में एक्सेलेंट एक्सेलेंट ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं होता है। Yes, sir. Yes, sir. So you will find that your personality has got some pluses, some strengths, some limitations, some restrictions. So आपको जिस चीज में पुल अप करना है, आपको वही बताएगा जिसको वो एक्सपीरियंस हो, और जो आपका हितैषी भी हो। Definitely. So, sir, I got a good enlightenment on that, sir. My question, next question was on the same ground, sir. मुझे लगता है आपने काफी कुछ चीजें आप इसमें मेरी कवर कर दी है, सर. But still, I want to ask कि अभी just they have given their written examination of NDA as well as CDS, and the next step will be like या तो वो next written देंगे जो 1 सितंबर को होना है, या somebody is sure कि is going to get qualified SSB. I want you to tell us, give us insight, sir, how somebody can start SSB preparation, or you want to suggest, I want all also, sir, ki you want I want a suggestion from you ki how somebody should start written preparation. So both of that part, sir, SSB preparation and as I well will as. divide it into two parts. Yes, sir. First question was, आप बोल रहे हो कि अगर आपने 21st, we'll go with the NDA exam because 21st से NDA CDS भी है, Yes, but sir. I will address it with, because I think the a person who is appearing for NDA is a teenager. उसके लिए I will focus it on that portion just for I would Reference. say reference purpose. That's all. Yes. तो अगर आप देखेंगे, आप 21st को पास कर लिया, बाय 10th में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको पता है, या फिर आपने खुद ही अपना एफर्ट डाला, आपने देखा कितने राइट है कितने रॉन्ग है, कट ऑफ आपका 300 है, 310 है, 330 है। लेकिन अगर आप पहले से जानते हो आप मेरा 400 प्लस है, तो आपको मोर और लेस आप क्लियर हो कि भाई आई एम गोइंग टू पास। सो देन व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड फैमिली, फर्स्टली अभी आपको अगर CUCT या JEE खत्म हो गया तो वो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। बट वेन विद रिस्पेक्ट टू द SSB, आई विल से आपको सबसे पहले फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द SSB प्रोसीजर्स। ठीक है, सर. ठीक है ना, देर आर वेरियस मेथड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने आपको पहले को बता दिया। दूसरा चीज है आपका कम्युनिकेशन, Okay. आपका रिटर्न भी ठीक होना चाहिए, आप अपना स्पोकन भी ठीक होना चाहिए। अब इसमें आप इंग्लिश का लिटरेचर तो नहीं पढ़ पाओगे अभी, Hmm. लेकिन आप definitely I will always recommend you, because I have done this myself. Even they say that even Winston Churchill used to do this. Okay. आप कोई टॉपिक पढ़िए और अपने मिरर के सामने अपने आप बात करिए, अपने आप के आंख में आंख डाल के बात करिए। इट माइट लुक फनी, बट अगर आप ये करेंगे तो आपका, आप जब बोल रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या है, आपको वो करेक्शन, ऑटो करेक्शन होता रहता है।
तो आप कम्युनिकेशन अपना ठीक करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन मीन्स देर आर, आई स्पीक, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने कम्युनिकेशन इज ऑफ, देर आर थ्री पार्ट्स इन कम्युनिकेशन। वन थिंग इज ए ट्रांसमिशन होता है, मैंने कुछ आपको बोला। दूसरा इज आप रिसीव करिए। एंड देन तीसरा आपका समझ में आया कि नहीं है, मेरे को फीडबैक भी चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन है। ठीक है तो सर। आपको ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन का जो OLQ की जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका तीनों टेक्निक, अगर आपको लिखना, कुछ लोग लिखते हैं इतना, आई वुड से उनका हैंडराइटिंग इतना खराब है कि वो खुद को समझ में नहीं आता। हाउ डू एक्सपेक्ट द साइकोलॉजिस्ट, आपको मतलब साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना है ना, उसको स्टोरी लेना है और उसके बाद आपको OLQ पे जज करना है। यस तो सर। ऐसी चीजें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू, व्हेन आई एम सेइंग रिटन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू हैव टू राइट। हम्म। कई लोग बोलते हैं मैं 2.5 घंटे में थक जाता हूँ, तो ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको लिखिएगा। तो ये चीज आपको रिटन एंड स्पोकन का कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट इज द ओपनिंग पार्ट। यस सर। सेकंड थिंग इज अबाउट योर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैं ऑलवेज आई रिकमेंड यू टू लिसन टू द ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रादर देन ए टीवी हॉट डिबेट विच इज हैपनिंग ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। ओके ओके कि सर। कौन जीता कौन हारा, अभी इलेक्शन का भी मौका है, किसने क्या बोला, किसने क्या किया। क्योंकि फौज में ये ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, वो वहां पे आपको, इट मे बी जियोपॉलिटिक्स, मे बी हाउ स्पोर्ट्स, सी दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट बी नोइंग, एंड द नेशनल न्यूज व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली, बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। यस डेफिनेटली। You don't want some private company's agenda going into it. So that is one part. Then you'll have to practice the tests, whether it is psych test, whether it is basically there is a GPE, there is one portion you'll have to practice that. Firstly, you should know what a GPE is, what are the factors which are involved. That's where I said that they should, that familiarization and practice of test, then only some you will come to know that they, यार भाई I didn't understand this or I don't know that, ऐसा आपको पता चलेगा। Thereafter somebody has to identify your own weak area. Once you practice you will come to know कि मेरा weak area ये है, हम्म। कि मेरा weak area ये है, तो मुझे जैसे कि फिजिकल में मैं रस्सी चढ़ नहीं पा रहा हूँ, वेरी सिंपल रुडिमेंटरी थिंग, आप रस्सी चढ़ना प्रैक्टिस कीजिए। यस सर। तो आपको 3 महीने हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे आप इंडिया जाना चाहते हो, वहाँ 200 मीटर का टेस्ट है, तो स्विमिंग तो आना चाहिए आपको। ठीक है सर। समर का मौसम है, कहीं स्विमिंग सीख सकते हो तो सीख जाइए। यस सर। यस सर। वहां जाकर पीटीटी पे स्विमिंग फेलियर बनोगे वहां पे, और ड्राई स्विमिंग करोगे, यू विल बी नोइंग दैट यस टिपॉय सर। के ऊपर आप स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे हो रात भर। तो उससे अच्छा है कि ये 3 महीने में आप सीख जाओ, एंड इट इज जस्ट ए लाइफ स्किल, यू विल लर्न समथिंग। सी यस। दैट इज ऑल्सो, एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ फिट ऑल्सो। So these kind of things you can, weak area, अगर आपका weak area, you never gone to a swimming pool and आप कोरोना से गुजरे हो, these things, कभी स्विमिंग पूल सब बंद ही होंगे तब, हाँ। उसके बाद आप 11th 12th में आ गए हो, तो आप बड़े मतलब you didn't get that scope, so these things you can plug in, and then finally I would say you have to have that ड्राइव इन यू कि आप उसको इम्प्रूव करना है। नो, इसके लिए कौन सा मीडियम आपको लेना है आप खुद ही जानते हो, आप किताब पढ़ते हो, या आप किसी नॉन पर्सनालिटी से पूछते हो, या फिर आप कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करते हो। देर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प इफ इट इज अवेलेबल। Nice, sir. Thank you, sir. This is a very insightful details, sir, which you have given. Anything specific you want to say about the written part, sir? Anything specific if you want to? अगेन आई विल टेक अ रेफरेंस केस ऑफ 1 सितंबर 2024, आपका 154 एनडीए का एग्जाम है। Okay, sir. नाउ लेट अस से आप 11th से पास हो गए, अभी 12th में आ गए हो, Hmm. तो आज 29 अप्रैल है, तो यू विल से दैट कि वो 1 अप्रैल, सो यू कंसिडर इट, अभी Okay. आपके पास 4 महीने। Yes, sir. सी द फर्स्ट थिंग व्हेन आई व्हाट आई टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो, फेमिलियराइज विद योरसेल्फ विद द टेस्ट। फेमिलियराइज में क्या होगा, देयर इज अ मैथमेटिक्स एग्जाम, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, दिस इज ऑल फेमिलियराइजेशन, नो, कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग, 1/3 होता है उसमें, वन करेक्ट आंसर इट इज 2.5, यू मिस आउट, you put a wrong mark, you will lose out 0.83, and iska approximate cutoff 75 is required. If you don't clear the maths, this I will say it as familiarization, and you know what is the syllabus, go through the syllabus, don't go blindly कि हमारा डीबीएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में हमारा ऐसे चल रहा है तो हम ऐसे ही चलेंगे। जो पूछा जा रहा है उसमें आप एप्लीकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये सिलेबस है आपका, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उसको आपने जान कर लिया।
you know that. Then the second part comes is that portion of your preparation. पहले आपका, अगर आप 12th में हो, आपको इंटीग्रेशन तो अभी तक पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। यस सर, तो यस सर। आपको अगले 4 महीने में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। Either you go to a crash course, or you get it covered by a tuition teacher, or you do whatever, or you learn yourself. But you will have to do that. This is where I say that this is that manthan wala period wherein you will have to get through 75 से ऊपर ले आना है, और गैट का आपको 150 क्वेश्चन है, उसमें आपको कट ऑफ, अगर आपको 360 चाहिए, 75 इसमें माइनस कर लिया तो आपको 285 चाहिए होंगे। इफ यू कंसिडर कट ऑफ एज 360 एंड यू वांट टू प्ले सेफ कि भैया मेरे को 400 चाहिए, जिसमें 100 चाहिए मैथ्स में और इसमें 300 चाहिए, तो कितने आपके करेक्ट होना चाहिए, कितना आप, हाउ विल यू गेट दिस जन? आइदर यू गो टू ए मेंटर और यू गो थ्रू द टेस्ट, देयर आफ्टर यू गो टू, आई टोल्ड यू, देन यू हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट। यस सर, प्रैक्टिस। So by the next 2 months, you should have finished by June end, I would say, or maybe after सावन का महीना आ जाएगा around July, you will find that by that time you should have finished your syllabus. And ये जो chapters, 8 chapters या 10 chapters which are going to be asked in mathematics, or this is what I have read. Thereafter, by July 15th to the next this thing, you will have to go through a number of mock tests. Okay. And then you will realize that here I am marking. You will have to analyze. This is where I say it made, in my personal experience, I've seen that I used to identify the candidates who are weak in English, who are weak in a particular subject like geography. 20 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, आप ज्योग्राफी में डब्बा गोल है तो आपको 20 के 20 जाएंगे। और सिमिलरली I have been teaching here in and around Gurgaon and Delhi area. They find English को वो लोग blank मानते हैं, but English is the highest scoring subject. Yes sir, yes sir, yes sir. See, now you have to know कि भैया मेरा advantage कहाँ है। आप गेम खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वहां पे भी आपने ऐसे ही प्लान करते हो। डेफिनेटली सर। आप कल 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 आप ऑफिसर बन के आप जब फ्लाइंग प्लान करते हो तब भी आप ऐसे ही प्लान करते हो। सो ये आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो आपका OLQs में 4 पार्ट्स है, those are coming here only. Now after that you practice, you come to know your weak areas, and then you will have to go through that. This is what, and then either you take a mentor who is telling you कि भाई तुम्हें इसमें less है, या you are yourself realize that, or your father is there to tell you कि भाई इसमें, this is how you go for the return. By around 1st September से 10 दिन पहले आपको you should have been comfortable. This is what I will say ideal situation है, लेकिन it may or may not be possible for everyone because of other things. So that is why if you go to an institute or something like that, that is also good. थैंक यू सर, वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आपने अपना बहुत प्रेस्टिजियस टाइम, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया सर। एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प मिली होगी विद योर इनसाइट्स। एंड सर आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर जो भी बच्चे आपसे डाउट पूछे सर, प्लीज हेल्प देम। आई नो कि आपके पास यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल विथ यू, बट प्लीज सर वी वांट कि आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालें। एंड फ्रॉम द फैमिली ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेप, वी आर रियली थैंकफुल सर कि आप अपना टाइम दे पाए फॉर दिस ग्रेट पॉडकास्ट। एंड वी विल अगेन वांट टू सी यू कि सर आप और इनसाइट हमें दे सके सर। थैंक यू सर। Thank you very much.